कहा है कि 1 बाय 1 सबसे मिल के बात की जाए और जैसे ऑब्जर्वर्स को पार्टी के लगाया गया इस चीज़ की। हालांकि जो हो रहा है राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, परंतु एक नागरिक के रूप में और खास करके राजस्थान से जुड़े हुए होने के नाते जिस प्रकार से राजस्थान को लगातार अस्थिरता में ढकेला गया है, केवल और केवल कुछ कांग्रेसियों की सत्ता की लालसा की वजह से, जब से ये सरकार जन्मी है 2018 में, ये अस्थिरता की कोख से निकली हुई सरकार ने बार बार राजस्थान की जनता के मुद्दों को पीछे करके कि किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार, बलात्कार, दंगा कम हो, इस पर कोई भी प्राथमिकता से कार्य नहीं किया गया है और बल्कि केवल सत्ता और सीट बचाने की कवायद लगातार राजस्थान देखता आ रहा है और इसीलिए बहुत जल्द राजस्थान इस अस्थिरता को खत्म करने का निर्णय भी लेगा। परंतु और 2-3 निष्कर्ष भी कल के और आज के घटनाक्रम से साफ हो जाते हैं और उनमें से एक निष्कर्ष ये है कि फर्जीवाड़ा करने के नाम पर जो चुनाव तथाकथित किए जा रहे थे, जिसमें कि ये सोच थी कि एक दरबारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रिमोट कंट्रोल की तरह उसको संचालित किया जाएगा जैसे मनमोहन सिंह जी को किया जाता था, तो उसी दरबारी ने जयपुर में ही रिमोट की बैटरियों को निकालने का काम किया है। दूसरा निष्कर्ष ये साफ है कि किस प्रकार से गांधी परिवार, जो अपनी पूर्ण तरीके से जनता के बीच तो विश्वसनीयता खो ही चुका है, वो अब दरबारियों के बीच भी उसकी घटती हुई विश्वसनीयता का एक और प्रमाण सामने आ चुका है। और तीसरी बात ये भी स्पष्ट हो चुकी है कि किस प्रकार से आज ये सरकार जो राजस्थान में चल रही है, उसके लिए जनता का हित या जनता के मामले ये प्राथमिकता नहीं है, बल्कि केवल और केवल सत्ता बचाओ इनके लिए एक प्राथमिकता बन चुकी है। और ऐसी अस्थिरता के खिलाफ आज राजस्थान की सरकार ने अपना मन पहले से ही बना लिया है कि आने वाले दिनों में इस अस्थिरता को खत्म करते हुए विकास करने वाली, सुशासन वाली सरकार उनको चाहिए। Shall we talk about Rajasthan, the current scenarios like that nothing is now clear that will be the CM, and the Ashok Gehlot is saying that nothing in my hands. MLA want either Ashok Gehlot or they don't want, basically they don't want Sachin Pilot as a CM. They bring someone to Delhi. So how do you react? Although this is entirely an internal matter of the Congress party, what is transpiring in Rajasthan, and therefore the BJP has no comment to offer on it. But as a citizen of this country, and particularly being associated with Rajasthan, one feels disappointed that ever since this government has come to power in Rajasthan, their only agenda and priority has been Pad Bachao, Seat Bachao, and not to address the issues of Rajasthan. And therefore today Rajasthan unfortunately has become number 1 in rapes, number 1 in Tushtikaran, number 1 in Bhrashtachar, number 1 in riots. And the people of Rajasthan are suffering because the Congress party is busy in positions and in seats and in power politics. But two things are evidently clear from the events that have transpired since yesterday. One, that in the name of an election, the fake, fabricated sham of a process that was being carried out, where the Gandhi family thought that it could foist a non-Gandhi loyal Darbari in the form of Ashok Gehlot as its hand-picked choice and could remote control him like Dr. Manmohan Singh was remote controlled in the UPA government. This plan has gone completely awry when the loyal Darbari has removed the remote controls batteries in Jaipur itself. Secondly, the Congress's first family, which has now become a non-performing asset, and its reducing credibility and authority, which was there amongst the people, has now been established that their credibility, even amongst Darbaris, is at an all-time low. And therefore, today the people of Rajasthan have only one thing on their mind, is to how to get rid of this government of instability and replace it with a government that promises Vikas and Sushasan in the days to come. गांधी से वो लोग मिले हैं, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का कहना है कि साथ आना होगा बीजेपी को हटाने के लिए। लालू
जी, सोनिया जी और नीतीश जी के बीच में जो मुलाकात हुई है वो दरअसल जेलधारी, बेलधारी और अवसरवादी की मुलाकात है और इसका एजेंडा कोई देश बचाना नहीं है बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है। 2014 से पहले ये फ्रंट जो बनते थे ये तथाकथित सेकुलरिज्म को बचाने के नाम पर फ्रंट तैयार होते थे। आज 2014 के बाद सारा ये हिजाब गिर चुका है और सीधे सीधे सेव सेकुलरिज्म की कहानी नहीं है बल्कि सेव करप्शन की कहानी है। कोई चारा घोटाले में लिप्त है और दोषी है तो कोई नेशनल हेराल्ड के घोटाले में लिप्त है और ये सारे लोग जिनका कोई मिशन नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है, केवल और केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है, एम्बिशन फॉर करप्शन है, एम्बिशन फॉर डिवीजन है और एम्बिशन फॉर कमीशन है, वो एक साथ आ रहे हैं और भ्रष्टाचार का फ्रंट बना रहे हैं। पर जनता ने इसको भली भांति समझा है और बार बार जब ऐसे फ्रंट बनते हैं तो भ्रष्टाचार के फ्रंट को बैक कर देने का काम जनता ने बार बार किया है। उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने चोरों की सरकार कहा था। उन्होंने फिर बयान देते हुए कहा है कि उनके विभाग में बहुत करप्शन है। देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और अपने आप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई जगह खोजने की तलाश में है और दूसरी ओर आए दिन आरजेडी उन्हें पीएम बनना तो दूर की बात है पर पीसीएम जरूर बना रखी है। प्रोबेशनरी सीएम के रूप में आए दिन उनका अपमान करती हैं। ये वही सुधाकर सिंह है जिन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि नीतीश जी की सरकार चोरों की सरकार है और वो चोरों के राजा है। आज उन्होंने फिर से एक बार सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार का ब्यौरा देते हुए कहा है कि उनके विभाग में भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और 25 से 50 हजार की घूस ली जा रही है। परंतु नीतीश बाबू इसके सामने पूर्ण तरीके से समझौता करके बैठे हैं क्योंकि आज सत्ता की लालसा में और जगह बचाने की लालसा में आज जिस प्रकार से आरजेडी आए दिन उनका अपमान करती हैं। कभी शिवानंद तिवारी कहते हैं उनसे कि उनको आश्रम चले जाना चाहिए और तेजस्वी जी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। कभी जब वो विपक्ष को एक करने की कोशिश करते हैं तो उनको आरजेडी कहती है कि ये जो है मेंढकों को तोलने के बराबर एक प्रयास है। और जो बची कुची कसर थी वो जिस प्रकार से बिहार में सरकार आने के बाद जंगल राज, गुंडा राज और माफिया राज फिर से लौट आया है, चाहे वो बेगूसराय की घटना हो, वैशाली की घटना हो, पटना की घटनाएं हो, दिन दहाड़े लूट हो, चोरी हो, गोलीकांड हो, हत्याएं हो, जिस पर नीतीश बाबू कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज नीतीश बाबू का बार बार अपमान करने का कार्य आरजेडी ही कर रही है। वो प्रोबेशनरी सीएम बन चुके हैं, पीएम तो दूर की बात है।